Hello friends, myself Nisha and welcome to my microbiology series. Today we study about virology. Actually, virology series is already started and there is two videos uploaded related to the virology in herpes virus. In herpes virus, we already study about a human herpes virus type 1, human herpes virus type 2. This is the herpes simplex virus type 1 and herpes simplex virus 2. Today we study about human herpes virus type 3, which is called Varicella zoster virus. This is the most important video for university examination purpose. So let's start with today's topic. हाँ, वर्सीला जोस्टेरा वायरस इन्फेक्शन जिसको हम लोग VZV इन्फेक्शंस भी बोलेंगे. In this we study chickenpox and zoster or shingles. In chickenpox, what we see the bilateral vesicular rashes. What is the bilateral unilateral rashes? We already know that we are the bilateral social animals. So in chickenpox, the vesicular rashes develop both sides of our body, but in zoster or shingles virus, there is the unilateral vesicular rashes lesions develop. That is the lesions developed only in the either on the right or left side. Okay, so chickenpox mainly affected children. Chickenpox mainly affected children. Bilateral vesicular lesions. Now come to the zoster or shingles. In zoster or shingles, there is the reactivations of the latent varicella zoster virus. This is occur in the oldest people, more than 60 years oldest people. Occurrence is the neuron. In which neuron? Trigeminal ganglion. We already study trigeminal ganglion in other place where we study in herpes simplex virus 1. In herpes simplex virus 1, there is latency period is also occurs in the trigeminal ganglion. Okay? So this is a unilateral vesicular lesion that we already discussed about it. So we start with this today's topic, that is the chicken pox. In chicken pox, what we study pathogenesis, clinical manifestations and complications, and then lastly laboratory diagnosis, treatment, etc. Okay, so in chickenpox we study with the pathogenesis. So the most common mode of transmission is the aerosol, that is through air. We inhale air through breathing. So this is the most common mode of their transmission. And second other is the contact transmission, when we contact with the other bodies. So this infection is happening. And now we study how Varicella zoster virus enters in our body. Varicella zoster virus infected firstly through upper respiratory tract and through eyes. In eyes, it infects conjunctiva layer. This is called conjunctivitis. So conjunctivitis symptoms also appear in the chicken pox. In conjunctiva and upper respiratory tract, it spills over blood
and carried to mononuclear cells to the target tissues such as skin, respiratory tract and neurons. हाँ, तो हम लोग पैथोजेनेसिस में हमने क्या स्टडी किया कि ये सबसे पहले इन्फेक्शन कैसे काउज करता, एयर्स के थ्रू इन्फेक्शन काउज करता है, मोस्ट कॉमन मोड है ट्रांसमिशंस का जिसको एरोसॉल्स. सेकंड क्या होगा, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन मीन्स एक बडी जब दूसरे बडी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो किसी तरह के कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से हो सकता एक बडी. ठीक है. सेकंड और सॉरी ये इंटर कैसे करेगा, ये इंटर करेगा हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आइज़ के थ्रू. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आइज़ में जो कंजक्टिवा लेयर है उसके थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करेगा और ये ब्लड के साथ स्प्रेड कर जाएगा और कैरिड करेगा तो अपने टारगेट सेल्स तक पहुँचेगा. मोनोन्यूक्लियर सेल्स, इसका टारगेट सेल्स मोनोन्यूक्लियर सेल्स से टारगेट सेल्स तक पहुंचेगा. तो वो टारगेट टिश्यूज़ का क्या क्या हो गया, स्किन हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हो गया और न्यूरॉन्स हो गया. ठीक है, न्यूरॉन्स हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप का न्यूरॉन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. ओके, ठीक है. तो नाउ कम टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. I hope everybody is visible. I'm sorry, everything is visible in my screen. So, clinical manifestation. So, chickenpox mostly occur in the childhood, in children. The incubation period. What is the incubation period? Incubation period is the firstly the virus or any pathogen infected in our body, and after some time there is symptoms appear. So there is an interval between the virus infected and symptoms appear, that is the incubation period. So incubation period is the 10 to 21 days. This is the 2 to 3 weeks. And the rashes is the main manifestations of the chickenpox. And with the centripetal distribution. What is the centripetal distribution? That means it starts usually from our face and trunks and rapidly spread over our limbs, digits, distal part of the limbs. Okay? In this bilateral rashes appear, bilateral and diffuse distribution. Second is the appears in the multiple crops, multiple lesions. We have seen in this infection stages of the multiple crops, and that is the stages of the lesions. Firstly, it appears maculopapules. Second, it forms vesicles, then forms pustules, and now it forms scabs. What is the maculopapules? Maculopapules is the first stage of the lesions. Then it's developed in the form of the vesicle, and then after it filled with the pus. This is called the pustules, and after licking of the pus, there is a scars develop in our skin. This is called the scabs. And other clinical manifestation is the fever appears with its drop of the rashes. Means when one drop of rashes appears in our body with the fever. So now we study this in very simple language. तो इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले ये चिल्ड्रंस में होगा. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 21 डेज का होगा, दैट इज 2 से 3 वीक का होगा. इसमें रैसेस डेवलप होंगे. रैसेस जिसका मेन मैनिफेस्टेशन है, ये रैसेस कैसे होगा, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले सेंट्रली प्लेस्ड एरिया में होगा, फिर वो हमारे डिजिटल लिम्स ये सारे में ये डेवलप करेंगे. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल्स एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे यूजुअली फेस एंड ट्रंक से स्टार्ट होगा, और देन अगेन हमारे लिम्स के डिजिटल पार्ट्स में ये रैसेस डेवलप करेंगे. ये बहुत सारे मल्टीपल क्रॉप्स के फॉर्म में लेजन्स डेवलप करेंगे. इसमें इसके स्टेजेस होंगे आपके, पहले मैक्यूलोपैपुल्स ये फर्स्ट स्टेज है लेजन का, फिर वो वेसिकल के फॉर्म में वो लेजन्स डेवलप होगा. दिस इज द पेनफुल वेसिकल. देन वो पस्टुल्स बनाएगा. पस्टुल
उसमें पस प्रेजेंट होंगे मवाद, ठीक है। और फिर वो क्या हो जाएगा, जब पस लिकॉट हो जाएगा तो वो स्कार्स हो जाता है ना, स्कैब्स के फॉर्म में, ठीक है। इसमें फीवर्स मतलब इस ड्रॉप ऑफ रैसेस एक लेसेंस डेवलप होंगे, तो वो क्या होगा, फीवर के साथ, फीवर चल, फीवर कपकपी, ठीक है। अब आते हैं, नाउ इट्स कम टू द कॉम्प्लिकेशन। I hope this screen is visible to everybody. Now start with the complication. In complication, we firstly seen in our brain CNS involvement. In CNS, what is happened? Cerebral ataxia. What is cerebral ataxia? We already study cerebral ataxia in physiology, our first MBBS profession. Okay. Second is the encephalitis, third is the meningitis, and other complication is the pneumonia. Which type of pneumonia? Varicella pneumonia and Ray's syndrome. What is the Ray's syndrome? Ray's syndrome means the liver fatty degeneration of the liver following salicylate aspirin intake, ठीक है। A congenital and other syndrome is the congenital varicella syndrome. Congenital varicella syndrome occurs in pregnant female in early stage of pregnancy. So now we study दिस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो कॉम्प्लिकेशन में अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले ये ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा, CNS को अफेक्ट करेगा। CNS में क्या हो सकता है, सेरिब्रल अटैक्सिया हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस होगा, मेनिंजाइटिस हो सकता है। सेकंड क्या होगा, वेरिसेला निमोनिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और फिर रे सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। रे सिंड्रोम क्या होता है, इसमें लीवर का फैटी डिजनरेशन होता है। ये किसकी वजह से होगा, जनरली सेलिसाइलेट को इंटेक्ट करने की वजह से होगा। और सेकंड सिंड्रोम जो हो गया वो कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम होगा, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल में होगा, अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी में होगा। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेशन क्लियर हो गया। सो अब हम लोग आते हैं, चिकन पॉक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो नाउ कम टू द जोस्टर और सिंगलिस और जोना। सो ये इन विच वी स्टडी अबाउट पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। So today we study about this topic. So firstly we start with the pathogenesis. Pathogenesis what we see, it occurs, why it is happen due to the reactivation of latent varicella zoster virus, okay. And it mostly occur in the old age people. We already discussed it. More than 60 years old age people, we have seen this infection. And other one is the immunocompromised individual. That is the immunodeficient individual. That is the HIV patients. And other one is the what? Pregnant female and ये transplant people, transplantation occur in which type of people, okay. And it is the occasionally healthy adults. In sometime it can also be occur in the healthy adults. सो इन पैथोजेनेसिस में अपन लोगों ने पढ़ा कि क्या होता कि वेरिसेला जोस्टर वायरस का जो लेटेंस पीरियड में जो था वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, और रीएक्टिवेट होकर के ये जो इन्फेक्शन काउज करेगा उसे हम लोग जोस्टर और सिंगल्स और जोना बोलेंगे। ये सबसे पहले किस में होगा, ओल्डेस्ट पीपल में देखने को मिलेगा, मोर देन 60 ईयर्स ओल्डेस्ट पीपल में देखने को मिलेगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, दिस मीन्स उसमें इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी जनरल किस में होगा, HIV एड्स पेशेंट्स में ये हो सकते। सेकेंड
सेकेंड ये किस में हो सकता, जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, और जो अभी इंडिविजुअल ये किसी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाए हैं उसमें ये देखने को मिल सकते हैं। ये ओकेजनली हेल्दी एडल्ट में भी फाइंड किए जाते। ओके, so now come to the clinical manifestation. In clinical manifestation, so now come to the in clinical manifestation, we see the severe pain. Severe pain in which area? In the skin area where it is the infection occur. Second one is the mucosa, which the mucosa is present in our respiratory tract. So mostly infected area is the respiratory tract, supplied by one or more sensory ganglia, one or more sensory nerve cell. And rashes, in this rashes unilateral, segmental, we already discussed. Affected nerve involvement, mainly ophthalmic branch of trigeminal nerve involved at. ओके, क्लियर। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन ने क्या देखा कि इसमें सीवियर, आपको सीवियर पेन देखने को मिलेंगे। स्किन एरिया, जो स्किन एरिया अफेक्टेड है आपका, देखिए हाँ एक फिगर में देखेंगे कि इस तरह से यूनिलैटरल लीजन्स डेवलप है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता, और म्यूकोसा जहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे क्या होता, ये सप्लाइड होता वन और मोर सेंसरी नर्व गैंग्लिया के थ्रू। तो इसमें रैशेज यूनिलैटरल होगा, सेगमेंटल होगा, और अफेक्ट करेगा जो नर्व इन्वॉल्व होगा। तो जनरली ये ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के ऑप्थेल्मिक ब्रांच को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, सो नाउ कम टू द कॉम्प्लिकेशन। In complication, we see the post-herpetic neurogalia. Second one is the zoster ophthalmicus, and other is the Ramsay-Hunt syndrome, and fourth is the visceral disease. Okay. So in zoster ophthalmicus, what we see unilateral pain, because we already know that is the lesions develop unilaterally, while in the chickenpox the lesion may seen in the bilaterally. Okay, the unilateral pain develop in the zoster and is erases surrounding eyes, and so this is the zoster ophthalmicus. Zoster ophthalmicus में क्या होगा, यूनिलैटरल पेन होगा, रैसेस आइज के सराउंडिंग डेवलप करेगा। एंड सेकेंड वन इज द रैम्से हंट सिंड्रोम। तो रैम्से हंट सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा। फेशियल नर्व का क्या का जेनिकुलर ब्रांच, फेशियल नर्व का जो जेनिकुलेट गैंग्लियन इन्वॉल्व होगा, और ये क्या हो जाएगा, इप्सीलैटरल फेशियल पैरालिसिस। इप्सीलैटरल, व्हाट इज द इप्सीलैटरल, मतलब वन साइडेड लेटरल पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस। एंड थर्ड इज द विसरल डिजीज। विसरल डिजीज में आपको क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता। तो इसके कॉम्प्लिकेशन में अपन लोगों ने क्या पढ़ा, इसके कॉम्प्लिकेशन में अपन लोगों ने 4 तरह का कॉम्प्लिकेशंस देखा। इसके कॉम्प्लिकेशन में अपन ने 4, पहला देखा पोस्ट हार्पेटिक न्यूरोगेलिया, सेकेंड में इज द जोस्ट्रा ऑप्थैल्मिकस जिसमें यूनिलैटरल पेन होगा, रैसेस आइज के सराउंड डेवलप करेगा। थर्ड वन इज द रैम्से हंट सिंड्रोम जिसमें फेशियल नर्व का कौन सा, जेनिकुलेट ब्रांच इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें इप्सीलैटरल फेशियल पैरालिसिस हो सकता, और आपको डिजीज देखने को मिल सकती ये निमोनिया। ठीक है, so now come to the laboratory diagnosis. In laboratory diagnosis, what we do specimen collections, cytopathology जैसे tanzanic smear. What is the tanzanic smear? We already discussed previously. That is the ये base of the ulcer scrap, and then stand with the gimsa or right stain. After again we see the inclusion body, that is lips loose body, which is converted or formed to multinucleated germ cells up here. So this is the tanzanic smear cytopathology. And other is the virus isolation, and fourth is the Varicella zoster virus specific method. In Varicella zoster a specific method, we study a specific antigen detection, a specific immunoglobulin
M immunoglobulin G antibody detection, PCR, and biofire meningitis or encephalitis, which is called panel test. हाँ, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन ने क्या देखा, हमने देखा कि स्पेसिमेन का कलेक्शंस करके कि स्पेसिमेंस को कलेक्ट कर लेंगे और उसमें लेबोरेटरी डायग्नोज कर लेंगे कि इसमें किस तरह का इन्फेक्शन है. सेकंड था साइटोपैथोलॉजी, इसको टैंसलिक स्मेयर करेंगे. टैंसलिक स्मेयर में क्या करेंगे, पेनफुल बेस अल्सर को स्क्रैप करेंगे और उसको जिम्स और स्टेनोब्राइट स्टेन से स्टेनिंग करेंगे, जिसमें इंक्लूजन बडीज को फाइंडिंग करेंगे. इंक्लूजन बडी इज लिप्स लूज बडी, ये फॉर्म करेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड जेम सेल्स. ठीक. वायरस का आइसोलेशन, मतलब वायरस को देख लेंगे कि वायरस को आइसोलेट करके कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं. सेकेंड वन इज द वेरिसेला जोस्टर वायरस का स्पेसिफिक मैथड. तो स्पेसिफिक मैथड में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्शन. वेरिसेला जोस्टर वायरस का एंटीजन को डिटेक्ट कर लेंगे. क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है कि उसका एंटीबॉडीज हमारे बॉडीज में आता है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसका एंटीजन को डिटेक्ट कर लेंगे. तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, तो ये एंटीजन को डिटेक्ट कैसे करेंगे, बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टैनिंग. इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टैनिंग के थ्रू ये डिटेक्ट कर सकते. दूसरा क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन एम इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी. देखिए पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीजन आया, तो उसके लिए क्या हुआ, हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लिया. तो एंटीबॉडीज तो स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक एंटीजन के लिए. तो सपोज ये वायरस एंटीजन आया, तो उसके प्रति हमारी बॉडी ने अगर एंटीबॉडी डेवलप कर लिया, तो वो एंटीबॉडी को अगर डिटेक्ट हो जाएगा, दैट्स मीन कि ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ था. बट नाउ वी आर द सेफ, बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुका है. तो इस ये एंटीबॉडी कौन सा एंटीबॉडी बनाता है, इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन जी. ये दोनों तरह का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है. तो इसको हम लोग एलिजा टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं. सेकेंड वन इज द PCR. तो PCR पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन. तो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें इसको DNA को स्टेन करते हैं. ठीक है, तो देख लेंगे कि कोई वायरल DNA प्रेजेंट है कि नहीं. तो उसको PCR ये रियल टाइम PCR के थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं. एंड लास्ट है आपका बायोफायर मेनिंजाइटिस और फिर इंसेफ्लाइटिस, इसको पैनल टेस्ट. हम देखा था कि इसका जो सिम्टम्स था मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, तो इन कंडीशंस में भी होगा, तो इसके थ्रू भी हम लोग इसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं. हाँ, और सेकेंड अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में this is the treatment. तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एंटीवायरल ड्रग देंगे. एंटीवायरल ड्रग हम लोग पहले से हर्पीस से पढ़ते आ रहे हैं कि एसाइक्लोविर देंगे. एसाइक्लोविर, ठीक है, तो एसाइक्लोविर इसमें देंगे. फिर क्या करेंगे, फैम्सीक्लोविर देंगे. एंड लास्ट वन इज द ये वैलासाइक्लोविर. एसाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर और ये फैम्सीक्लोविर. इतना नाम याद नहीं रखना है, बस एसाइक्लोविर याद रख लें, हो गया. ठीक है, तो ये क्या कर सकता, ये कैन नॉट प्रिवेंट पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोगेलिया. पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोगेलिया को ये प्रिवेंट नहीं कर सकता. ठीक है, हमने इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा था कि क्या होता है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोगेलिया काउज करता है. देखिए ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोगेलिया काउज कर रहा है. तो एसाइक्लोविर को देने से हम लोग इसका मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते. ठीक है, और बाकी सारा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. जो सिम्टम्स इसमें डेवलप हो रही, इसको हम लोग प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं. सो अब हम लोग आते हैं फिगर दैट इज़ द डायग्राम. तो डायग्राम में देख रहे हैं चिकन पॉक्स का. तो देखिए ये है चिकन पॉक्स का. चिकन पॉक्स में क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल लेजेंस डेवलप हो रहा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हमारे डिजिट्स लिम्ब्स में. तो देखिए यहाँ पर ये लेजेंस डेवलप हुआ और लेजेंस फिर धीरे धीरे स्प्रीड कर रहा. ये लेजेंस डेवलप हुआ, फिर ये लेजेंस धीरे धीरे स्प्रीड कर रहा डिस्टली. ठीक है, तो दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द चिकन पॉक्स. और इसमें और ये सेकेंड इन्फेक्शन क्या है, जोस्टर का इन्फेक्शन. हमने बोला था कि ये यूनिलैटरल इन्फेक्शन होता है. तो देखिए यूनिलैटरल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं. इसमें क्या हो रहा, ये जनरली आइज के सराउंड डेवलप कर रहा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा. ठीक है,
तो इस तरह के लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है वर्सीला जोस्टेरा वायरस के ऊपर। तो इसका हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। मैं कुछ ज़्यादा ही पिछले हुए। हाँ, तो इन वर्सीला जोस्टेरा वायरस इन्फेक्शन में हम लोग स्टडी करते हैं चिकन पॉक्स एंड ये जोस्ट्रा सिंगल्स में चिकन पॉक्स क्या होता है, इसमें बायलेटरल वेसिकुलर लेजन्स डेवलप करते हैं, जनरली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। जोस्ट्रा सिंगल्स में क्या होता है, जनरली ओल्ड एज पीपल को अफेक्ट करता। ये वर्सीला जोस्टेरा वायरस की जो लेटेंसी पीरियड उनके रीएक्टिवेशन से ये डेवलप हो रहा, ये जनरली कहाँ होगा, ट्राइजेमिनल गैंग्लियंस में देखने को मिलेगा, एडल्ट में देखने को मिलेगा और यूनिलैटरल रेसेस को डेवलप करता है। चिकन पॉक्स में इसका पैथोजेनेसिस, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी करेंगे। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि ये कैसे डेवलप करता, ये एयरबोर्न डिसऑर्डर है। तो एयर सॉल्स के थ्रू हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करता है, ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी करवाता और ये पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और कंजक्टिवा को इन्फेक्ट करेगा और स्पिल्स कर जाएगा ब्लड में और ये कैरिड करेगा मोनोन्यूक्लियर सेल से टारगेट टिश्यूज। इसका टारगेट सेल्स जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा वो स्किन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, न्यूरॉन हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो चिल्ड्रंस में होगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 21 दिन का होता है, 2 से 3 वीक का होगा। इसमें एरासिस इसका मेन मैनिफेस्टेशन है जो कि सेंट्रीपिटली डेवलप करेंगे, पहले फेसेस एंड ट्रंक पे डेवलप होगा, अब वो लिम्स और डिजीज में स्प्रेड करेगा। ठीक है, फिर अब इसमें बायलेटरल लेजन्स डेवलप होंगे और अपीयर्स होगा, मल्टीपल क्रॉप्स के फॉर्म में लेजन्स डेवलप होंगे। तो लेजन के स्टेजेस है यहाँ पे मैक्यूलोपैप्यूल्स के फॉर्म में, फिर वो वेसिकल्स बनाएंगे, फिर पॉस्चुल्स बनाएंगे एंड देन स्कैब्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें फीवर होगा, इस ड्रॉप ऑफ फ्लैसेस। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशंस में आपका हो जाएगा CNS इन्वॉल्वमेंट होगा जिसमें सेरिब्रल अटैक्सी हो सकता, इंसेफ्लाइटिस हो सकता, मेनिंजाइटिस हो सकता। इसमें वायरसेला निमोनिया देखने को मिलेगा, रेस सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। रेस सिंड्रोम में आपका हो जाएगा फैटी डिजनरेशन ऑफ द लीवर जिसको सैलिसाइलेट्स को लेने की वजह से होगा। और अदर क्या है, कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखने को मिलेगा। अब है जोस्ट्रा सिंगल्स और जोना जिसके पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि वो लेटेंट वेरिसेला जोस्टेरा वायरस की रीएक्टिवेशन की वजह से हो रहा, ओल्ड एज पीपल में हो रहा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनो डिफिशिएंट पीपल में देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखा जा सकता है, एड्स वगैरह पेशेंट्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में एंड ये जो पर्सन ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनमें मोस्टली ये सिम्टम्स अपेयर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये ओकेजनली हेल्दी एडल्ट्स में भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ कम टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग देखेंगे कि जो एरिया अफेक्टेड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होने वाला, जनरली स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता, म्यूकोसल लेयर को, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। और इसमें जहाँ पे एक से ज़्यादा सेंसरी नर्व गैंग्लियन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेनली इसमें अफेक्ट करता ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व को, ये यूनिलैटरल ये रैसेस इसमें डेवलप होंगे। नाउ कम टू द कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या होगा, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोगिलिया होगा, फिर जोस्टर ऑप्थेल्मिकस होगा, रैमसे हंट सिंड्रोम होगा और विस्टल डिजीज निमोनिया काउज होगा। तो हम लोग ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को एसाइक्लोविर के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, बट पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोगिलिया इसे एसाइक्लोविर के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जोस्टर ऑप्थेल्मिकस में क्या होगा, यूनिलैटरल पेन्स डेवलप्ड होंगे आइज़ के सराउंडिंग, जिसका फिगर हम लोग नीचे देखेंगे। रैमसे हंट सिंड्रोम में क्या होगा, फेशियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, कौन से फेशियल नर्व, जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये इप्सिलैटरल मतलब एक साइड पैरालिसिस करवा देगा फेस का। अब होगा इसमें वेस्टल डिजीज में निमोनिया होगा। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या करेंगे, स्पेसिमेंस को कलेक्ट कर लेंगे, साइटोपैथोलॉजी में टैंजनिक स्मेयर बनाएंगे। टैंजनिक स्मेयर क्या है, इसमें जो पेनफुल अल्सर का बेस उसको स्क्रैप करेंगे, उसको जिम्स ऑफ राइट स्टेन से स्टेन करेंगे, जिसमें आपको इंक्लूजन बडी लिप्सलूस बडीज फाइन होगा और ये क्या करेगा, मल्टी न्यूक्लियोटाइड जेम का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड वन इज द वायरस को आइसोलेट
करके देख सकते हैं। और अदर क्या है जिसको वेरसेला जोस्टर का स्पेसिफिक नेटवर्क में हो गया, इसके एंटीजन को स्पेसिफिकली डिटेक्ट कर ले, किसके थ्रू, इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग के थ्रू डिटेक्ट करे, फिर या फिर इसके लिए जो एंटीबॉडी बन रहा है उसको डिटेक्ट कर ले। तो कौन सा एंटीबॉडी बनता है, आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट है, उसको एलिसा टेस्ट के थ्रू इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर पीसीआर में क्या करेंगे, डीएनए, ये वायरल डीएनए को डिटेक्ट कर लेंगे। और लास्ट वन इज द पैनल टेस्ट, जिसमें क्या होगा, बायो फायर मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस के सिम्टम्स को देख लेंगे। ट्रीटमेंट एसाइक्लोवीर, ये फैमसिक्लोवीर और वैलासाइक्लोवीर के थ्रू कर सकते हैं। मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोगिलिया को एसाइक्लोवीर के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दिए गए हैं चिकन पॉक्स और जोस्ट्रा वायरस के, जिसमें जोस्ट्रा में यूनिलैटरल इन्फेक्शन देखने को मिला और चिकन पॉक्स में बाइलैटरल इन्फेक्शन देखने को मिला। सो हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप मैंने आप सभी को ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया। बट फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह का डाउट या फिर किसी तरह की मिस्टेक इस वीडियो में मुझसे हुई हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।